Good morning students, my name is Dr. Shefali Daya and today we'll do class 12 chemistry D and F block elements part 2. Our subject mentor is Mrs. Anshul Singla from SCRT Gurgaon. The topic D and F block elements part 2 will include general trends in properties of transition metals. And these properties what we are going to discuss further are about charge by radius ratio, their densities, melting and boiling points, their magnetic nature, oxidation states, their color compounds, their catalytic activity, and the formation of stable complexes. Coming to the very first trend of atomic and ionic radii, right? It is basically based upon the size, and the size of D block elements, which are known as transition metals, is in between S and P block, right? इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डिस्कशन है हमारा ट्रेंड्स में तो हम उसकी पोजीशन देखते हैं. फाइन, S वाला है इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड P block is on the right hand side. The D block comes in between the S and P. Now what happens with the increase in number of electrons and obviously in the same shell, what happens? The size decreases. Why the size decreases? Because the electron, जो outermost electron है, that is inverted, that is pulled inward and the size becomes gradually small, right? Now those placed between 3 to 6 shows a simple decrease as casually as with adding of the electron. जो हमने P block में किया था, addition of electron के साथ slowly वो size छोटा होता जाता है. Similar is the condition here. Now what happens? It happens till the midway. Midway mean to say when the exactly half of the d orbital get fit, right? So from 7 to 10 जो हमारा चेंज इन रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. पहले तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो रहा था, 7 to 10 तक वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर. It gradually it is also pulled, but it is not such pulled कि वो उसका साइज बहुत छोटा हो जाए. फाइन बेटा जी. उसके बाद क्या है, हमारा आता है 11th and 12th ग्रुप. 11th and 12th ग्रुप जो होता है उसके अंदर उस एटम में जो हमारा d ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड होगा. फाइन, आई थिंक होपफुली आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है. जो हमारा d ऑर्बिटल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में फुल हो गए हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाएगी एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन जो रेडियाई है 11th and 12th का, दे हैव स्मॉल बिट larger radii as compared with the previous ones, right? So the next thing I want to show here is what? Look at the figure. Here you see कि जब हम शुरू करते हैं d ऑर्बिटल, बिल्कुल इनिशियली हम शो कर रहे हैं, जब हम d ऑर्बिटल को शुरू कर रहे हैं तो स्लोली विद ग्रेजुअल इंक्रीज, ये नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये साइज है y में. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है द साइज इज डिक्रीजिंग, राइट? इट इज showing a remarkable decrease here, right? Midway जैसे ही आता है वहां पर क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो डिक्रीज है वो कम हो जाता है. They all have almost same structure. It happens till 10. Here is the 10. After 10 in 11th and 12th, when the configuration is fully filled, d orbital have 10 electrons. It is showing a small increase in the radii. So this is the trend for period of d block elements. Now coming to the group. ग्रुप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप है जो हमारा 3d की वजह से है, नेक्स्ट के अंदर 4d है एंड टू द नेक्स्ट इट हैज 5d. 4d means there we have an additional orbital 4f also and likewise 5f also is there. So
with the addition of a orbital, this means we have f block also in between the long form of periodic table. Fine. तो f block के जो 14 elements बीच में आए हैं from lanthanum to ल्यूथेरियम, जो वो बीच में एलिमेंट्स आए हैं वहां पर ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इज स्मॉल, ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फर्दर हमारा जो साइज है दैट decreases, and similar is the case for 5D where due to the actinide contraction this size decreases. Hopefully समझ में आया. Fine. एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो. तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. अब the next property we are going to take is metallic character. Obviously we are saying these are the metals, so they should शो द मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी. अब हम मेटल जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्टेड विद आयरन. आयरन इज अ मेटल. फाइन. कॉपर इज अ मेटल. गोल्ड इज अ मेटल. हम यही पढ़ते हैं. ऑल दीज कम इन द ट्रांजिशन मेटल. ऑल दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स. फाइन. तो मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बाउंड होता है. राइट. और वो फ्रीली, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम होती है कि वो फ्रीली लूज कर जाता है. लूज करने से व्हाट हैपेंस कि जो हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड जो अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल के बाद जो अंदर कर्नल होता है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव करते हैं. सो इट इज लाइक एक सी है इलेक्ट्रॉन्स की एंड द पॉजिटिव कर्नल्स आर एम्बेडेड इन इट. फाइन. ये बात समझ में आ गई. दिस इज द मेटेलिक बॉन्ड दे फॉर्म. मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर what I want to say is due to the low ionization energy metallic character काफी strong है. low ionization energy क्यों है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कम है. s2 4s2 3d. राइट. ये तो हमारा d वाले में है. फिर उसके बाद क्या है? हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन n-1 n-1 d का एंड ns. राइट. तो जो आउटर मोस्ट है दैट इज s. Fine. The unpaired d orbital electron 2 in addition forms the metallic bond. वो एक metallic bond बनाते हैं. Why? Because जो unpaired electron है वो भी participate करते हैं in the formation of these ions which forms the metallic bond. Fine. Hence the transition elements are hard. Why? क्योंकि ये नहीं पता वो C के अंदर kernel embedded है. The bond is so strong. आपको ये नहीं है कि आयंस की तरह सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया एंड दे आर फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड. द मेटेलिक बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन दैट और ड्यू टू इट दे आर वेरी हार्ड एंड ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स शो द सेम थिंग एक्सेप्ट exception is there. Exception is mercury is soft. It is a liquid in fact. Right. Zinc and cadmium, they are not hard due to the absence of unpaired electrons. Fine. Unpaired electrons किसके? d orbital के. Fine. Now इनकी configuration stable है. Now moving to next. Melting point and boiling point. Melting point क्या होता है बेटा जी? Melting point जब solid से melt करके liquid में आ जाए. बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड से इवेपोरेट कर जाए, वेपर फॉर्म में चला जाए. राइट. वी नो दिस टू थिंग्स. सो दीज आर टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है. टेम्परेचर हम बताते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. नाउ हियर व्हाट हैपेंस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द विच वी कॉल इट एज मेटेलिक बॉन्डिंग. जो हमारा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हम कह रहे थे सी में है, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. टू ब्रेक दैट बॉन्ड वी नीड हायर एनर्जी एंड हेंस वी कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई हियर. Right. In this figure I want to show this red line is basically depicting the boiling point and blue line is for the melting point. अब आप यहाँ देखें gradually हमारा melting point increase हो रहा है but exactly on the 7th, mean to say the half filled
जो हमारा मिडवे आता है, मिडवे के अंदर हम क्या करते हैं, मिडवे में वो डिप दिखाता है, दैट इज MnNTC, दैट शोज एबनॉर्मल डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट. Why? Because it has half filled d orbital. Then it do the same similar decrease, it shows the same similar decrease at the end of the group, end of the period. Fine. The next is density. Density क्या होता है? Mass by volume. Now we know mass by volume का मतलब क्या है कि mass of the transition metal जो है वो ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि smaller is the size, irregular decrease है, smaller is the size, the atomic mass है वो increase कर जाता है, and hence comes the density increases in a period. And we can say the zinc is showing the lowest density क्योंकि इसका size बड़ा होता है. Remember हमने atomic radii वाले में किया था. तो density simple m/v, mass जो हमारा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके size पे. छोटा size है, इलेक्ट्रॉन्स का ही वेरिएशन है हमारे पास, तो हमारा size जो है that will tell us that the density is increases along a period. Fine. This is showing the graph. The density is increasing regularly, but at the end it is decreasing. Why? Because of the size, that is it is showing the large volume. Fine. Now here we are doing ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी, द मूवमेंट हम लोग पीरियोडिसिटी स्टडी करते हैं, हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है. इट इज एक्चुअली क्या है, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और जो एटम है दैट बिकम्स एन आयन, दैट इज कैटायन बन जाता है. राइट. तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वन थिंग, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा एक न्यूट्रल एटम से? जब होगा जब वो लूजली बाउंड होगा या फिर कोई फोर्स ऐसी नहीं होगी दैट इज स्ट्रांगली मेकिंग इट इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस उसको इतना होल्ड नहीं कर पाएगा. फाइन. ये हमारा रीजन होगा कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. फाइन. तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है दो कंडीशंस में ये शो करता है. The very first condition is, एक तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो, और दूसरा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि अगर मेरा छोटा रेडियाई है तो जो न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक जो पावर है, जो इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड करता है, व्हाट हैपेंस कि वो रिलेटिवली लार्ज हो जाएगी. जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंड करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ. फाइन. दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फेस करेगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. द सेकेंड थिंग इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट. नाउ हियर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन डी, राइट, एंड S. फाइन. तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिसको हम कहते हैं जो 1 by 1 निकलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है basically depends upon the two factors, that is the effective nuclear charge and the screening effect. Fine. तो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है सबसे पहले वैलेंस शेल से रिमूव होता है. इस चीज को नोट कर लो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं अलोंग अ पीरियड, वो डी में ऐड होता है, बट जब रिमूव होता है तो वैलेंस शेल से होता है, दैट इज 4s. राइट. तो 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू होता है. तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम इस ग्राफ से शो करना चाह रहे हैं, व्हाट इज इट, कि जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी लो होती है and slowly it increases. This ionization energy is in between S and P because it is the same feature they are observing.
बट यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि जो हमारा 12th ग्रुप है एंड जो 11th ग्रुप है उनके डी में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए फुल हमारे डी ऑर्बिटल करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 12th वाले में तो S2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो हमारा 11th ग्रुप है उसके अंदर कितने होते हैं S1। तो जो 11th ग्रुप जो है उसका जो हम यहाँ शो करना चाहते हैं वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फर्स्ट के अंदर S से, और जो हमारा 12th का है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड वो हमारा 3d10 4s2 वहां से निकलता है। जो हमारा जिंक है, हम फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रहे हैं, तो वो हमारा मैक्सिमम होता है, राइट। तो नोट इट, हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी आयनाइजेशन की एनर्जी है, वो हमारी रीऑर्गेनाइजिंग एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कभी डी को फिल करते हैं, कभी डी को हाफ फिल्ड करते हैं, एज वी हैव डन विद कॉपर एंड क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन। शायद आपको याद हो, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर भी हमने की कॉपर एंड क्रोमियम की, जिसकी वजह से दैट इज द रीजन कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो डी एंड एस के अंदर जंप करता है, एंड दैट इज शोइंग द रीऑर्गेनाइजिंग एनर्जी, एंड ड्यू टू दैट it is somewhat irregularity here, where the ionization enthalpy, the second ionization enthalpy of manganese is less than chromium. Why? क्योंकि chromium यहाँ 3d5 होता है, ठीक है, and zinc is less than copper. Why? Because copper यहाँ 3d10 होता है और वो 4s1 होता है। फाइन, तो हम क्या कह रहे हैं, तो जो हमारी फर्स्ट वाला जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो एंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है, बिल्कुल एब्रप्ट एक एबनॉर्मल इंक्रीज करती है जब हमारा फुली फिल्ड होता है। जो सेकेंड वाली होती है, इट इज शोइंग समवॉट रीअरेंजमेंट ऑफ एनर्जीज, एंड ड्यू टू दैट इट इज शोइंग द इरेगुलरिटीज। फाइन, this is the case, this is the general trend over here जो हमने note down करना है। Fine, moving to the next, this is oxidation state। अब भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेम वही चीज है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा n-1 d 0 to 10 एंड ns1 2 होता है। फाइन, तो हमारी जो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दैट इज ड्यू टू द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी, जो 5 सब ऑर्बिटल्स, सब शेल्स ऑफ डी। फाइन, तो उसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करती है। फाइन, तो जो वेरी फर्स्ट थिंग इज द इंक्रीज जो है वो मिडिल तक होता है विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है ये मिडिल तक, क्यों, क्योंकि जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एस एंड डी ऑर्बिटल शेल्स में से है वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं, वो उस पावर से रिएक्ट करती है, उससे बॉन्डिंग करती है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल जो स्कैंडियम है उसका +3 होता है, वाई 3d1 एंड 4s2, वो इजिली रिमूव करता है, स्कैंडियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हमारा Sk2 इजिली रिमूव होते हैं, और लाइक वाइज जब हम Mn पे पहुंचते हैं, इट इज शोइंग अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट टू द मैक्सिमम ऑफ +7। आपको याद होगा वी डू ऑक्सीडेशन नंबर in redox reaction chapters where we are doing the oxidation number of manganese। मैंगनीज की बहुत सारी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली थी, जिसके अंदर बेसिकली हमारी 2, 4 + 7 आती है, जैसे KMnO4, राइट, उसके अंदर कितनी है हम निकाल देते। दिस इज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी Mn है, दैट इज शोइंग +7 इज द मैक्सिमम, +4 +2 क्रोमियम की होती है, +3 +6, दे आर वेरिड, राइट। नाउ टाइटेनियम जो है दैट इज शोइंग 4 ऑक्सीडेशन स्टेट when it loses 2 d electrons and 2 s electrons,
राइट, तो वो 4 भी शो करता है। अदरवाइज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर इज व्हाट, +2। फाइन। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगी, बेसिकली ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बनाएंगी बाय टेकिंग इन सिंपल 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। वाई, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दे विल नॉट गो फॉर आयनिक बॉन्डिंग एंड दे विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ द d orbitals. This is basically the nature of these oxidation state, right? The elements of second and third transition series जो हैं, जो हमारी लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड्स वाली जो कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज के अंदर हमारी 4D एंड 5D वाली स्टेट्स आती हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं दे आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फर्स्ट, राइट? क्यों? क्योंकि उनके बीच में f ऑर्बिटल बीच में आ जाता है। फाइन। Now the atomic radii increases down the group. जैसे जैसे हम down the group आते हैं atomic radii increase होती जाती है फर्स्ट के अकॉर्डिंगली। तो जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा? इजी हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होगा और इस वजह से जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन जो है वो 6 ग्रुप के मेंबर हैं, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट, कलर्ड कंपाउंड्स, colored ions. Transition metal form colored ions. Fine, this is the question. Now most of the D block metals, they form what? Colored compounds in their solid or liquid state. Fine. What happens when we have d orbital? All the orbitals, all the 5 orbitals are degenerate orbitals. Mean to say all of them show same energy. Degenerate का यही मतलब है, right? Now when ligands come closer to d orbital, d orbital किसका? मेटल का। तो जब हमारे empty d orbital के अंदर या हमारे जो d orbital हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है उसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए कोई भी लिगेंड, कोई आयन, कोई न्यूट्रल, कोई चार्ज्ड आयन जो भी है, वो जब पास आता है हमारे मेटल के, तो क्या होता है, जो हमारा d ऑर्बिटल है दैट एक्चुअली स्प्लिट्स। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। द वन पार्ट इज EG and the second is T2G. जो हमारे EG ऑर्बिटल्स हैं, आप यहाँ देखें EG and this is T2G. T2G के अंदर हमारे DXY, DAYZ and DXZ ये आते हैं, और यहाँ हमारे ऊपर क्या आएंगे? DX² -Y² DZ², राइट? अब क्या है बेटा, यहाँ पर जो हमारी व्हाइट लाइट है दैट इज द विजिबल लाइट, ठीक है? जब वो ट्रांजिशन मेटल के ऊपर आती है तो व्हाट हैपेंस, जो d ऑर्बिटल है, जो हमारे T2G के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गेट प्रमोटेड, और एनर्जी मिलने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है एंड जंप टू EG। कहाँ जंप कर गया? EG के ऊपर। फाइन, दिस इज द केस, ये हमें सबको दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या है, जब वो जंप कर गया तो जो एक्साइटेड एनर्जी है, जो हमारी इसने एब्जॉर्ब की है, उसके अलावा जो हमारी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, वो हमें क्या कहती है? वो हमारे को वो कलर देती है। मतलब जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है जिसके अंदर एब्जॉर्ब रेडिएशन के अलावा जो भी कलर है, दैट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द कंपाउंड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। अब आप लिख लें डी ट्रांजिशन को। इन द ट्रांजिशन मेटल पार्टिकल्स, when the electrons jump from one energy level to another,
in the same d subshell, in the same orbital of the d orbital, it is known as d-d transition. कलर समझ में आया? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज अगेन नोट इट डाउन बेटा जी. जो जंप किया है इलेक्ट्रॉन, वो जो कलर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट which is transmitted radiation, that shows the color of the compound. Fine. Now moving to next. This is magnetic properties. Now metal showing the magnetic properties. Most magnetic property हम किसकी मानते हैं? They are what? They are iron. हम क्या करते हैं? कभी भी मैग्नेट लाते हैं, सबसे पहले आयरन से एक बार चेक करके देखते हैं. आयरन से अगर वो चिपक जाता है, इट इज आयरन, इट इज मैग्नेट. फाइन, यही करते हैं. हम कंपास बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं. नाउ बेटा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ फ्रॉम स्कैंडियम टाइटेनियम, हमने स्कैंडियम यहाँ पे लिया है, बट स्कैंडियम आयन देखो 3+ आयन है, जो हमारा 3+ आयन है, मीन टू से 3d04s0 कॉन्फ़िगरेशन है. इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल ये एम्प्टी है बेटा, नो इलेक्ट्रॉन. Cu2+ के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. D इज फिल्ड. Note it down, D is filled. It is also it don't have any unpaired electron. In V3+, it has 3d2, that is 2 unpaired electron, and likewise you can check the complete table. Fine, सबको दिख रही है table. Now the magnetic property of D block element क्या है? वो किस पे बेस्ड है? The paired and unpaired electrons के ऊपर. तो हमने 2 पार्ट्स में मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिवाइड किया है, द वन विद अनपेयर्ड एंड द वन विद पेयर्ड. अनपेयर्ड वाले को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड वाले को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक. जो अनपेयर्ड वाला है, दैट इज पुल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दैट इज एक्चुअली पुल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाइल इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर इज रिपल्शन बाय द मैग्नेटिक फील्ड. फाइन. यहाँ पर हम क्या करते हैं? हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं. कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे हैं, कुछ आयंस हमारे ऐसे हैं जो हमारे डायमैग्नेटिक हैं. बट द मोर सिग्निफिकेंट इज द पैरामैग्नेटिक करेक्टर. द मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस जो है, इसको हम अब किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट से. क्या कहते हैं उसको हम? मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम बोर मैग्नेटोन के अंदर शो करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा है दिस. राइट. यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं? N is equal to the number of unpaired electron. For example, in the case of titanium, we have one unpaired electron. One unpaired electron को हमने put किया, the value comes out to be 1.73 bm. Right? जो हमारी वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो जितनी ज्यादा होती है हमारा सब्सटेंस, उतना ही पैरामैग्नेटिक होता है. बट यहाँ मैंने आपको आयरन की बात नहीं बताई. आयरन इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज व्हाट? इट इज एक्सीडिंगली मैग्नेटिक in contrast with all the other substances. So it is known as ferromagnetic. तो आज हमने क्या पढ़े? हमने पढ़े 3 टाइप, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक जहां पर अनपेयर्ड है, डायमैग्नेटिक जहां पर पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक है. जो फर्स्ट 2 है उनमें से पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन के, वो हमारे ज्यादा important सिग्निफिकेंट, जिसको हम कहते हैं हमें ज्यादा मिलते हैं. दे आर एक्चुअली पुल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स. राइट. जिसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट से, जिसका हमने फॉर्मूला दिया है. मोर इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, मोर इज द पैरामैग्नेटिक करेक्टर.
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ट्रांजिशन मेटल के अंदर d ऑर्बिटल हमारा या तो फिल हो रहा है या एम्प्टी है। कंप्लीटली फिल्ड है वहां पर जो है हमारी एज सच कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो सकती, राइट? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमारे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग 2 electrons from the ligands. That could be any kind of ligand, neutral and positive or negative. Fine. So due to the small size of the metal and the presence of the empty d orbital, the transition metals can easily form complexes. राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हेक्सा एक्वा कॉपर लिया है, जहां पर हमारे पास क्या है, वाटर के 6 लिगेंड्स सेंटर मेटल कॉपर से थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बॉन्डिंग कर रहे हैं। हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है दैट इंक्रीजेस विद द राइज इन एटॉमिक नंबर, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसको एकोमोडेट कर सकता है वो लिगेंड्स को। फाइन। कमिंग टू नेक्स्ट इज हमारा क्या आ गया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। दीज टू प्रॉपर्टीज आर गुड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन का पूरा लेसन है, राइट? कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल्स के, दे हेल्प इन the formation of products from the reactants without getting involved in the reaction, right? This is what catalysis. ये क्या करता है, it actually forms the intermediate, and the intermediate compounds जो हैं वो क्या है, they actually bring products and reactant closer. Fine. ये क्यों कर पाता है? Why? Because it has unpaired of d orbital. Mean to say it provides the surface to for both products as well as the reactants, and with the free valencies जिसके अंदर reactant absorb होते हैं and the products can easily form and speed up the reaction. Then next are the interstitial compounds. इंटरस्टिशियल का क्या मतलब होता है, जो मेन एटम्स हैं उनके बीच में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हों। मतलब जो एटम्स हैं हमारे बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके इन बिटवीन स्पेसेस के अंदर हमारे ट्रैप्ड एटम्स हो जो स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू दैट, जिनका जो साइज है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंटरस्टिशियल वॉइड्स बिटवीन द होल प्लेट्स। फाइन। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका साइज इतना बड़ा है, उनकी जो स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन है वो वेरी कर जाएगी विद द इंटरस्टिशियल एटम्स। फाइन। तो हम ये देखते हैं कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहां पर इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर जो स्मॉलर एटम है वो आ जाता है, एंड जो हमारा फ्रैक्शन के अंदर हमारे उसका मॉलिक्यूल के अंदर हम उसको एटम को डिपिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट इज टाइटेनियम हाइड्राइड, जहां हाइड्रोजन हमारा 1.3 है। दैट इज व्हाई बिकॉज हाइड्रोजन इज स्मॉलर इन साइज। टाइटेनियम के बीच के अंदर मतलब इंटरस्टिशियल वॉइड्स में हाइड्रोजन आ गया है, एंड इट इज नॉट द कंप्लीट, it is actually what it is interstitially within it. इनकी characteristic है they are inert, they have higher melting point as compared to the pure metal. pure metal के addition के अंदर होते हैं ये, they are hard, they are tough, and obviously they show same metallic character. They are hard, tough, metallic bonding is present. So interstitial compounds are these only. Fine. Next is alloy formation. Alloy कब बनेगा? Alloy के अंदर हम क्या करते हैं? It is homogeneous mixture of two metals, 2, 3, right? कब? जब उनका comparable size हो not more than 15%. तो हमने बहुत सारे alloys देखे हैं, right? सबसे पहला alloy जो हमारे पास है, जो हम precious बहुत metal मानते हैं, gold. Gold is 22 carat, mean to say 22 is the gold, and the other 2% is what? That the other 2 is some other metal. Fine.
Next is alloy is hard and they have high melting point. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि हम ना एलॉय मानते हैं फेरस एलॉय, जो हम आयरन के बहुत सारे एलॉयज पढ़ते हैं, जैसे हम आयरन के बहुत सारे यूजेस करते हैं, ग्रिल बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ आयरन। तो वहाँ पर हम उनको फेरस एलॉयज के फॉर्म में चेक करेंगे। आप देखिएगा हार्डवेयर स्टोर पे आप जाएंगे, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आयरन का बना हुआ है, एक रिफाइंड है, एक थोड़ा सा रफ मिलेगा। वहाँ क्या होता है, वहाँ एलॉय की कंसंट्रेशन चेंज होती है। एंड द फेरस एलॉयज आर क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड दीज, राइट। द नेक्स्ट सम एग्जांपल्स आर ब्रास, स्टेनलेस स्टील एंड ब्रोंज। मैं आपको पिक्टोरियली शो करती हूँ। यहाँ पर जैसे ब्लू कलर है हमारा मेन, हमारे कोई भी हमारा मेन मेटल है, और जो ग्रीन हमारे है वो शो करता है हमारा जो उसके साथ क्लब किया हुआ है फॉर द एलॉय फॉर्मेशन, राइट। This is the recapitulation, the properties of transition metal, what we have done. These are the very important point. I hope आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े. This is very important. This is just a recapitulation. क्वेश्चंस जो असाइनमेंट के लिए है वो मैं आपको साइड बाय साइड इन बिटवीन बता चुकी हूँ। एवरी टॉपिक जो है उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है विद वाई। Explain color formation, explain complexes, explain why catalytic property, explain the change in melting point and boiling point, right? These all are the questions. So this is the recapitulation. Hopefully you got all well. Thank you.